اب اتنی بات سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو وزن کریں، محسوس کریں، اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے تقاضے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اپنے کرتوت، اپنے کارنامے، اپنے عقیدے سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں۔ ظاہر ہے ایک کلمہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کرنا تھا وہ کر نہیں رہے ہیں، ڈھکوسلے بہت زیادہ ہے، چوچلے بہت زیادہ ہے، انگوٹھا چوم کر اظہار محبت کیا جاتا ہے، جلوس محبتی سے اظہار عقیدت پیش کیا جاتا ہے، حور بنا بنا کر نچوا کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل تقاضا ہے محبت کا۔ آئیے میں بتاتا ہوں محبت رسول کے اصلی نمونے کیسے صادر ہوئے، اور یہی طریقہ کار صحابہ کا تھا، تابعی کا تھا، تبع تابعی کا تھا، ائمہ دین کا تھا، علماء کرام کا تھا، اور آج تک نہیں قیامت تک یہی طریقہ کار ان ایمان والوں کا ہوگا جو صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تصور کرتے ہیں۔ زندگی میں گھٹنائیں، واردات، واقعات بے شمار ہوئے ہیں، مگر ان میں سے محبت رسول کا نمونہ جو پیش کرتے ہیں وہ واقعات چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس طریقے سے محبت کی جاتی ہے، اس طریقے سے۔ یہ ہے نمونہ اصلی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے غلام، کالے کلوٹے غلام، بیٹھے ہوئے ہیں، منہ لٹکائے ہوئے ہیں، چہرے پر اداسی اور مایوسی کی لکیریں نمودار ہیں۔ حضرت ثوبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غمگین، رنجیدہ اور پریشان دیکھا، فکر میں ڈوبا دیکھا، اللہ کے نبی نے پوچھا مالی اراک حزینن یا ثوبان، اے ثوبان کیا بات ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پر اداسی ہے، کیا وجہ ہے کہ تیرے ہونٹوں کی مسکان آج ختم نظر آ رہی ہے؟ اے ثوبان ذرا بتلاؤ، مجھے بھی سمجھاؤ۔ حضرت ثوبان نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دماغ میں ایک خیال پیدا ہو گیا، میں سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری موت ہو جائے اور قیامت آ جائے، پروردگار عالم اگر مجھ سے خوش بھی ہو گیا، مجھے جنت بھی مل گئی، میں جنت میں بھی چلا گیا، اور اے اللہ کے نبی اس آخرت میں، اس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو سکا، کیونکہ آپ نبی ہیں، اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں کہ آپ کا مقام کچھ اور ہوگا، آپ کا رتبہ کچھ اور ہوگا، آپ کی جنت کچھ اور ہوگی، اور میری جنت تو ادنا، میری جنت تو معمولی ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنت مل بھی گئی، آپ کی زیارت نہ ہو، آپ کا دیدار نہ ہو، تو میں جنت میں کیسے رہ پاؤں گا؟ صحابہ ایسی محبت کرتے تھے، جنت مل بھی گئی، جنت میں ہم چلے بھی جائیں گے اور آپ ہی کو نہیں دیکھ پائیں گے تو ہم جنت میں رہ کیسے پائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بھی سسک گئے، ٹھٹک گئے، رک گئے، خاموش ہو گئے۔ ایسا چاہنے والا محبت رسول کا اصلی نمونہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی کو دیکھنا، نبی سے ملنا اسے جنت سے بھی زیادہ محبوب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، سمجھا دیا تمہیں ڈرنے کی، غم کرنے کی ثوبان ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر بھی ہوگا اور اسی کے ساتھ جنت میں بھی رہے گا۔ نبی سے محبت ہوگی، نبی کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں سے محبت ہوگی، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صحابہ سے محبت ہوگی تو ان کے ساتھ ہوں گے، گانے والوں سے، بھنگڑا ڈالنے والوں سے، اچھلنے والوں سے محبت ہوگی تو ظاہر ہے انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اب اپنا ذرا سوچ لیں، فیصلہ کر لیں کہ محبت دل میں اللہ کے رسول کی کیسی ہے تو سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اور محبت کا یہ جو ناٹک ہو رہا ہے یہ اصلی نمونہ ہے کہ نقلی ہے؟ آئیے آگے بھی دیکھتے ہیں، نمونے اور بھی ہیں، اصلی نمونے اور بھی ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد معرکہ احد کو یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے لیے یہ جنگ کتنی سنگین جنگ تھی،
शिकस्त के बाद का तसव्वुर जरा लाइए, 70 सहाबा की शहादत, अल्लाहु अकबर। वो 70 सहाबी जिनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपना गुजारा, अपनी जवानी तय की, नबूवत के दौर में जिनकी सोहबतें इख्तियार की, जिनके साथ आप सफर हदर में रहा करते थे, आज उनमें के 70 सहाबा शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को दफनाने के बाद रंजीदा, गमगीन, आंखों में आंसू लेकर मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं। बोझल कदमों से आप मदीना जा रहे हैं। इस शिकस्त की खबर अहले मदीना को हो गई। मदीना में कोई नहीं सिवाय औरतों के, मदीना में कोई नहीं सिवाय मुनाफिकों के, मदीना में कोई नहीं सिवाय बूढ़ों के, मदीना में कोई और नहीं सिवाय छोटे छोटे बच्चों के। जाहिर है मुनाफिक, उनको क्या मतलब है जंग? वो औरतें जिन पर जंग फर्ज ही नहीं, वो बच्चे मासूम जिनको जंग में ले जाना दुरुस्त ही नहीं, यही लोग मदीना में रह गए। इनको जब खबर मिली कि अल्लाह के नबी पर कयामत टूट पड़ी है, सारे लोग बेचैन, औरतें परेशान, हाय मेरे नबी किस हाल में होंगे। हजरत खनसा उन्हीं औरतों में से एक औरत मदीना से बाहर आकर अल्लाह के नबी से मिलना चाहती है, नबी की खैरियत मालूम करना चाहती है। फोन का जमाना नहीं है, टेलीग्राम का जमाना नहीं है कि फौरन खबर हो जाए। खबर धीरे धीरे आ रही है और कोई वाज़ेह खबर नहीं मिल रही है। दिल तड़पता जा रहा है कि नबी का क्या हाल है। हजरत खनसा आगे बढ़कर आने वालों से पूछती है, लोगों बताओ, मैदाने कारज़ार के अहवाल सुनाओ। लोगों ने कहा, ए खनसा तेरे अब्बा शहीद हो गए। दूसरे ने कहा कि तेरा बेटा शहीद हो गया। तीसरे ने कहा तेरा भाई शहीद हो गया। हजरत खनसा रोने लगी, कलपने लगी, कहने लगी, ऐ लोगों, मैंने अपने बाबा के बारे में तो नहीं पूछा, अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा, अपने शौहर के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछना था नबी के बारे में बताओ, मेरे नबी किस हाल में है। कहने वाले ने कहा नबी जिंदा है, नबी सलामत है। दिल को ठंडक आई, दिल को राहत मिली। हजरत खनसा मुंतजिर है कि नबी आए तो नबी का चेहरा देखो, नबी की जियारत करो। बिलाखिर अल्लाह के नबी मदीना के करीब पहुंचे। सहाबा चारों तरफ से अल्लाह के नबी को घेरे हुए थे। हजरत खनसा ने गुजारिश की, ऐ लोगों, मेरे दिले बेकरार को करार तो लाने दो। ऐ लोगों, मुझे अल्लाह के नबी की जियारत और दीदार तो कर लेने दो। सहाबा ने रास्ता दिया। हजरत खनसा ने जाकर मुलाकात की, सलाम व आदाब के बाद कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप जिंदा है, आप सलामत हैं, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे अब्बा शहीद हो गए, मेरे शौहर शहीद हो गए, मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे बेटा शहीद हो गए। मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है, सब तो आपके लिए है। आप सलामत तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत रसूल का असली नमूना ये दौलत से प्यार है, जमीन से प्यार है, मकान से प्यार है, औलाद से प्यार है, चाहे मनसब से, कुर्सी से, ओहदे से, फिर भी कहते हैं मुसलमान है। नहीं, हजरत खनसा की तरह सब कुछ नबी पर कुर्बान हो जाए, तब ये इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल है ना। अल्लाह के नबी नहीं है, उनकी सुन्नत तो है, उनकी हदीसें तो है। उस जमाने में लोग अल्लाह के नबी को जरा सा भी रंजीदा करना नहीं चाहते थे, थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते थे, नबी को छोड़ते नहीं थे। आज उनकी सुन्नत मौजूद है, हम उसे छोड़ देते। नबी होते उनको भी छोड़ देते ना, फिर भी कहते हम मुसलमान हैं। नबी के सुन्नत पे अमल नहीं है। असली नमूना सुने, एक और नमूना में आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। वक्त तो पूरा हो चुका है, थोड़ी सी इजाजत दी। हजरत हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी की प्यारी साली और फूफीजाद बहन भी है। अल्लाह, गम का पहाड़ हजरत हमना पे टूट पड़ा है। अल्लाह के नबी सोच रहे हैं कि मैं हजरत हमना से बात कैसे करूंगा, शुरुआत कहां से करूंगा।
कैसे मैं खबर दूंगा। मदीना पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी फूफीजाद बहन हजरत हमना से मुलाकात की और सीधा सीधी फरमाया, ए हमना, अल्लाह ताला तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए। हजरत हमना ने पूछा, किस बात पर? मैंने कौन सा कारनामा किया कि रब्बुल आलमीन मुझे अजर अजीम अता फरमाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हमना, तुम्हारे मामा अमीर हमजा जिंदा ना रहे, वो शहीद हो गए। हजरत हमना के मोहतरम मामू हजरत अमीर हमजा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए। उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ने के बाद कहा कि मेरे मामू को अल्लाह वहदहुल्ला शरीक शहादत मुबारक करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये खबर सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए हमना, अल्लाह वहदहुल्ला शरीक तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए। दोबारा अल्लाह के नबी से पूछा, अब क्या हुआ? कहा, ए हमना, तेरे भाई अब्दुल्ला बिन जहश भी शहीद हो गए। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान भाई किसी का शहीद हो जाए, बहन के लिए यह खबर कितनी दर्दनाक है, जिसके साथ बचपन गुजरा है, हाथों में हाथ डालकर उछलते खेलते कूदते ये जमाना गुजरा है, वो बचपन की यादें, वो जवानी की यादें हजरत हमना पर कैसी कयामत टूटी होगी। मगर नबी का चेहरा सामने है, मोहब्बत रसूल ये है। सिर्फ पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अपने भाई के लिए भी दुआ की, अल्लाह जन्नत मुबारक करे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए हमना, अल्लाह वहदहुल्ला शरीक तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए। ये तीसरी मर्तबा क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अब क्या है? अब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हमना, तेरे शौहर भी शहीद हो गए। उनके मुंह से एक चीख निकली, बेहोश हो गई। अल्लाह के नबी ज़ारो कतार रोने लगे। जब हजरत हमजा को होश आया, पूछा अल्लाह के नबी ने कि जब मैंने कहा तेरे मामू शहीद हो गए तो होश में थी, जब कहा कि भाई शहीद हो गए तो होश में थी, जब मैंने पूछा कहा कि तेरे खाविंद शहीद हो गए तू बेहोश हो गई। कहने लगी, क्या बताओ, मेरे सब कुछ वही थे, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, यही ख्याल आया कि मैं बेहोश हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक औरत के लिए शौहर सबसे बढ़कर है। मगर जब होश में आई हजरत हमना कहने लगी, अय अल्लाह के नबी, ये थोड़ी देर की दिक्कत थी, थोड़ी देर की परेशानी थी, ये थोड़ा सा छोटा सा गम था, गर्चे मैं इसे बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। मगर अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सलामत हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप पर सब कुर्बान, लोग अपना बेटा, अपना भाई, अपना शौहर कुर्बान कर रहे हैं, लोग अपना जाहो मनसब कुर्बान कर रहे हैं। आज के जमाने में हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकालते, अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल नहीं कर पाते। ये हैरत की बात है, कहते हैं कि ईमान वाले हैं और मुसलमान हैं। तो आइए आज़म कीजिए, मोहब्बत रसूल के असली नमूना बनकर जिंदगी गुजारेंगे, असली नमूना बनकर जिंदगी गुजारेंगे। अरे अंगूठा चूमना क्या है, अंगूठा चबा डालेंगे, अगर तकाजा हो वक्त का तो चबा डालेंगे, लेकिन जो तालीम नबी ने नहीं दी उस तालीम को आम करना या उस पर अमल करना, ये मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक तमाशा है, सिर्फ एक तमाशा है। और तकाजा क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तलाश कर अमल किया जाए, ये मोहब्बत रसूल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सारे मुसलमानों को मोहब्बत रसूल से आशना फरमाए। परवरदिगार आलम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम बिदअत व खुराफात से इज्तिनाब की सलाहियत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।